Okay. So come to the question related to this topic. Write down. Find the find the surface area. Find the surface area. Find the surface area of a cuboid of dimension. Find the surface area of a cuboid of dimension 2 centimeter multiplied 3 centimeter multiplied 4 centimeter. Okay, are you clear about the question? Means one is length, second one is breadth, and third one is height. Okay, and you have to find the surface area. देखो क्वेश्चन में आपसे सरफेस एरिया भी बोल सकता है, अगर सिर्फ सरफेस एरिया बोल रहा है तो आप समझ लेना वो आपको टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है, ठीक है। यू हैव टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। Who will tell me what is the formula to find the total surface area of a cuboid? Anyone? 2 into AB plus C. Okay. So surface area equal surface area of cuboid equal 2 into AB plus BC plus CA. Just put the value 2 multiply 2 into 3 plus 3 into 4 plus 2 into 4. There. Do the multiply. 2 multiply 6 plus 12 plus 8. 12 is 20 or 6 26. 2 into 26. 52 centimeter square. This is the total surface area of a cuboid. Everyone is clear? Write the next question. Find the next question. Find the total surface area. Find the total surface area of a cube. Find the total surface area of a cube. ठीक है? Whose side is 2 centimeter. Whose side is example. Side is 2 centimeter. ठीक है? What is the total surface area? Surface area of a cube equal, 6a square. 6 multiply 2 square. So 6 into 4, that is 24 centimeter. This is the total surface area of a cube. Clear? Everyone has done? Next question, Leo. Find the curved surface area. Find the curved surface area. Find the curved surface area of a cylinder.
find the curved surface area of a cylinder of length 10 centimeter whose base radius is 7 centimeter. ठीक है? See, what is the question? Where there is a cylinder and the length of the cylinder is of this one is how much? What I have given? 10 centimeter and the base radius is 7 centimeter. And the question is, what is the curved surface area? Who will tell me formula for the curved surface? 2 pi r. So, curved surface area equals 2 pi r. You know, h is the length or height of the cylinder. So, h is how much? 10. R is 7. Just put the value of R and H to find the curved surface. 2 multiply the value of pi is not given. You will use 22 upon 7, and if it is given 22 upon 7 or 3.14 will be given in your question. ठीक है? अगर क्वेश्चन पेपर में पाई की वैल्यू 3.14 दिया है तो आप वही यूज करना और नहीं तो 22/7 नहीं दिया है तो आप वही यूज करना. ठीक है? into 7 into 10. So 7 and 7 cancel out. 400. ये 44 into 10. 444. This is the curved surface area of the cylinder. ठीक है? Next. Find the total surface area. Find the total surface area of the cylinder. Find the total surface area of a cylinder of length 10 centimeter whose base radius is 7 centimeter. Whose base radius is 7 centimeter. What is the formula for find the total surface area of cylinder? 2 pi RH plus 2 pi R square या 2 pi R H plus. ठीक है ना? Just apply the formula to find the dimension. I have given same, but the question is to find the total surface area. So the total surface area of this one is how much? 2 pi R H plus 2 pi. अब देखो why I am writing like this one? Because already 2 pi RH I have find. So directly can put the value, but just by using the numerical value. 2 into 22 upon 7 into 7 into 10 plus 2 into 22 upon 7 into 7 into 7. ठीक है? And why 2 pi r square? There are two circular base, pi r square, pi r square. So this one is 440 plus 7 cancel out and 44 into 7. ठीक है? 1 7 is cancel out. So 440 plus 308 8 और ये आ जाएगा 4 7. This is the total surface area of the
सबका ये आ रहा है ना 748 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट डाउन स्टूडेंट्स, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया, फाइंड द lateral surface area, lateral surface area of a cylinder of a cylinder of circular base, of circular base, ठीक है, of radius 7 centimeter and length of the cylinder is 10 centimeter. Same question है. You can also write the direct answer. What is the lateral surface area of the cylinder? 2 pi RH and the dimensions are given same. Then answer is, bolo, 440 centimeter square. Clear? Okay. Now I am going to the exercise question. ठीक है? See the exercise 17.1. Exercise 17.1. Exercise 17.1. क्वेश्चन नंबर 1. पहले इजी क्वेश्चन लेते हैं, फिर आप धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। कह रहा है, देखो पहले ही दे रखा है आपका, ठीक है, इनिशियली दे रखा है टेक पाई इक्वल 22/7 अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। तो पाई की वैल्यू आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही दे दिया है, 22/7 भी यूज करना है, 3.1.4 नहीं यूज करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहा फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर of radius 5 centimeter and height is 10 centimeter. तो फर्स्ट क्वेश्चन जो सिलेंडर का है वो बेस रेडियस is 5 centimeter and the height is how much? 10 centimeter. This is the cylinder. Given cylinder whose base radius is 5 centimeter and height is 10 centimeter. And the question is, leave your answer in term of phi. Phi की वैल्यू मतलब ठीक है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया आपको फाइंड करना है, सो फाइंड योर आंसर इन टोटल सरफेस एरिया इन टर्म्स ऑफ phi. ठीक है, डू इट. टोटल सरफेस एरिया, यू नो, टोटल सरफेस एरिया इज हाउ मच? 2 pi r h plus r, or you may write 2 pi r h plus 2 pi r square. दोनों तरीके हैं, either you use 2 pi r h plus 2 pi r square या 2 pi r h plus r. दोनों केसेस में कैलकुलेशन तो आपको करना ही करना है, ठीक है, चाहे जैसे करो. So note down. And do fast. Base radius is 5 centimeter, height is 10 centimeter. So just you can put the value here, 2 multiply pi. So in terms of pi, this one is 5.
Either you may take 2 pi common into r is 5 into h is how much 10 plus 2 pi into r is how much 5 square. ठीक है, then 2 pi into 5, 2 pi दोनों में 5 कॉमन लिया है, यहाँ से 10 बचेगा and plus 5, 5 to the 10 pi into 15, 155 centimeter square. And the answer is asking in terms of pi. You have to because it is given ना, leave the answer your answer in terms of pi. ठीक है, तो pi की वैल्यू इस क्वेश्चन में नहीं यूज करना है, बाकी जिस क्वेश्चन में आपसे बोला होगा कि 22/7 यूज करना है, करना ही करना है, इस क्वेश्चन में नहीं करना है। सबका आंसर सेम आ रहा है 155। ठीक है, हमने देखो यहाँ क्या किया है, इस फॉर्मूले को ओपन करके रखा है। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ डायरेक्ट करोगे तो दो लाइन में, ठीक है। Come to the question number 3. क्वेश्चन नंबर 3, एक क्वेश्चन आपको स्किप किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए। करा स्कूल प्रोवाइड्स मिल्क टू स्टूडेंट्स डेली इन सिलेंड्रिकल ग्लास of diameter 7 centimeter. If the glass is filled with milk up to height 12 centimeter, find how many liters of milk is needed to serve 1600 students. अच्छा बेटा, अभी इसमें वॉल्यूम आपको बताया नहीं ना, वॉल्यूम नहीं बताया ना, तो वॉल्यूम का भी पहले फॉर्मूला सीख लेते हैं, फिर आपको निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें आ गया तो वॉल्यूम भी देखते हैं। वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, तो वॉल्यूम पढ़ेंगे तो सबका पढ़ेंगे एक साथ। पहले वॉल्यूम ऑफ ट्यूब आया, ठीक है, जब वॉल्यूम पढ़ेंगे तो सब जितना भी सॉलिड है जो इनिशियली रिक्वायर्ड। वॉल्यूम मीन्स व्हाट? वॉल्यूम इज द स्पेस ऑक्युपाइड बाय अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट जितना स्पेस कवर करता है, जितना स्पेस, टोटल कवर स्पेस इज नोन एज व्हाट? वॉल्यूम। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है वॉल्यूम फाइंड कैसे करते हैं। जनरली फाइंड एरिया इनटू हाइट होता है। वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इनटू हाइट होता है। ठीक है, एरिया इनटू हाइट होता है। अब बताओ, अगर क्यूबाइड का वॉल्यूम निकालना हो तो एरिया इनटू हाइट क्या आएगा? L इंटू बी, एरिया आ गया, लेंथ इंटू ब्रेथ और हाइट h। ठीक है, तो एरिया इनटू हाइट आपको मिल गया क्या? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड को क्या बोलोगे? एरिया इनटू हाइट। ये एक जनरल क्वेश्चन चलता है। अब यहाँ पे बोलोगे a इंटू बी इंटू, ठीक है, a इज वेयर a इज लेंथ of cuboid, B is breadth and C is height. नोट कर लो, नोट डाउन।
ठीक है, आगे लिखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब रिटन एवरीवन, स्टूडेंट्स रिटन एवरीवन, देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबाइड की जगह पे क्यूब कर दो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये भी वही फॉर्मूले से बनेंगे, एरिया इंटू हाइट। बोलो अगर क्यूब का एरिया पूछे बेस एरिया तो क्या आएगा, बेस एरिया क्या आएगा ए स्क्वायर। भाई क्यूब का जो बेस होगा वो स्क्वायर बेस होगा, बिकॉज द साइड्स आर सेम, तो बेस एरिया स्क्वायर बेस होगा ए स्क्वायर, और हाइट कितनी है वो भी ए आएगा क्योंकि उसकी भी हाइट भी ए होगा, ठीक है, ए स्क्वायर इंटू ए दैट इज इक्वल टू, ठीक है। अब यूनिट अभी नहीं लिख रहे हैं, वो सरफेस एरिया में जैसे निकालते तो आप सेंटीमीटर में निकाला तो आपने सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा, मीटर में निकाला तो मीटर स्क्वायर लिखा, पर वॉल्यूम जब निकालोगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, अगर सेंटीमीटर में फाइंड कर रहे हैं तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो क्या आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम निकालते समय जब यूनिट लिखना तो क्यूब लिखना, और अगर एरिया लिखना तो यूनिट का स्क्वायर, ठीक है, यूनिट क्यूब यूनिट स्क्वायर, ये हाफ मार्क्स यहाँ से करते हैं अगर आप यूनिट नहीं लिखोगे तो, ठीक है, यूनिट जरूर लिखना है। आप सेंटीमीटर में निकाल रहे हैं, मीटर में निकाल रहे हैं, किस में निकाल रहे हैं, वॉल्यूम निकाल रहे हैं, क्या सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, ठीक है। पर जब भी एरिया होता है तो स्क्वायर यूनिट का आता है, और अगर वॉल्यूम आता है तो यूनिट का क्यूब आता है, तैयार है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ cylinder. See, this one is the circular cylinder whose base radius is circular of radius r and height is x. So this is the base circular cylinder of base radius r, circular base radius r and height is h. Bolo, what is the base area? Bolo, what is base area of the circular base cylinder? आर स्क्वायर, और दिस वन इज द सर्कुलर बेस, और आपको पता ही है वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं, एरिया इनटू हाइट, ठीक है, ठीक है ना, एरिया पाई आर स्क्वायर इनटू हाइट एच करोगे तो जनरली फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्लियर है। फॉर्मूले इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको ज्यादा याद करने की जरूरत ना पड़े, आप लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया जानो और सर्कुलर में पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया जानो, इतना ही से आपका काम है, ठीक है, नोट डाउन। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर। अब चलो क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, क्योंकि टॉपिक आ गया था इसलिए ये भी करना पड़ गया, नहीं तो हम सोच रहे थे वॉल्यूम आपको दूसरे एक्सरसाइज में बताएंगे, क्वेश्चन आ गया तो कर लिए, नोट कर लिया स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू हैव रिटन, only few student has replied, where are others? अनुष्का गुप्ता तो आ रही थी ना क्लास में, ऑफलाइन क्लास ले रही थी ना, डोंट नो, और इसमें बहुत से बच्चे थे जो ऑफलाइन ले रहे थे ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं, ओके
राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं कि a school provides milk to the students daily in a cylindrical glass of diameter 7 centimeter। तो ये ग्लास है, ठीक है। इस ग्लास की जो डायमीटर है, बेस डायमीटर ये बेस डायमीटर ही पूरा होगा, क्लियर। बेस डायमीटर जो है कंप्लीट ये सर्कुलर बेस की डायमीटर आएगी और दिस वन इज 7। और कह रहा है कि अप टू ब्रिम इट इज फिल्ड विद मिल्क, हाउ मच? 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन इज कि find how many liters of milk is needed to serve 1600 students। So first of all you will find the volume of a particular glass and then you will multiply that। Mohammed, change your display name in capital letters, ठीक है। टोटल पहले वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम निकालने के बाद आप कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 1600, क्योंकि एक स्टूडेंट को एक गिलास मिल्क मिल रहा है तो 1600 स्टूडेंट को कितने जो है ml सॉरी कितने मिल्क जो है प्रोवाइड होगा। पर क्वेश्चन पे ध्यान देना, क्वेश्चन में आपको कुछ और भी दिया रखा है, इट इज आस्किंग इन लीटर, ठीक है। यू विल कन्वर्ट सेंटीमीटर क्यूब इनटू लीटर, ठीक है ना। पहले वॉल्यूम फाइंड करो, पहले वॉल्यूम फाइंड करो। वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर इंटू 1600। भाई क्वेश्चन हो गया, वॉल्यूम फाइंड कर लिया आप लोगों ने। पहले तो यहाँ पे डायमीटर देखना, डायमीटर डायमीटर इज 7, द रेडियस इज व्हाट? रेडियस इज 7/2। अब 7/2 आप यूज करोगे या डायरेक्ट लिखोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि 3.5 भी करोगे तब भी 7 से कटना है, 7/2 करोगे तभी भी जो 22/7 जहाँ पे आएगा पाई आर स्क्वायर में 22/7 आएगा ना, वहाँ 7 से 7 डायरेक्ट कटेगा, ठीक है। तो बेटर है आप अपने पास जो भी ऑप्शन आपको मिले, कैलकुलेशन आसान हो जाए, उसका आप यूज कर सकते हो। 7/2 हम ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। हम इसको आगे वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल ग्लास, ठीक है, दैट इज इक्वल टू पाई
वैल्यू ऑफ I इज 22/7 इंटू R की वैल्यू R जो है 7/2 इंटू 7/2 स्क्वायर में नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, इंटू H इज हाउ मच 12। अब देखो 7 7 कैंसिल आउट एंड 2 2 जा 4 4 3 जा 12, ठीक है। देखो 2 2 जा 4 4 3 जा 12, तो आपके पास न्यूमरेटर में टर्म क्या बचा 22 इंटू 7 इंटू, ठीक है। अब किसी ने मल्टीप्लाई किया, वॉल्यूम फाइंड किया, मल्टीप्लाई किया, 3 2 जा 6 3 2 जा 6 इंटू 7 462, सबका आंसर इतना ही है ना, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब, 462 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ अ पर्टिकुलर ग्लास, ठीक है। चलो नोट डाउन, वॉल्यूम फाइंड करने के बाद, ठीक है। अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो इसको यहीं पे लीटर में कन्वर्ट कर लो और 1600 का मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि टोटल स्टूडेंट्स आर 1600 ना, या 1600 में मल्टीप्लाई करके तब लीटर में कन्वर्ट कर दो, बात वही है, ठीक है। मेरे कहने का मतलब एक गिलास का वॉल्यूम जो है 462 है, तो या तो इसको यही लीटर में कन्वर्ट करके 1600 का मल्टीप्लाई कर दो, या 1600 का मल्टीप्लाई करने के बाद तब लीटर में कन्वर्ट कर, दोनों केसेस में आंसर सेम आएंगे। अब जरा चलते हैं कन्वर्जन पे, ठीक है, क्योंकि देखते हैं कि कन्वर्जन कितने को पता है। स्टूडेंट्स हैव यू रिटन स्टूडेंट्स? यस, चलो आप लोगों ने हो गया, कर लिया 460। अच्छा ये देखो, इफ देयर इज अ पर्टिकुलर vessel of length 1 meter, height 1 meter, breadth and 1 meter length, then what is the volume of that vessel? बोलो, अगर 1 मीटर हाइट हो, 1 मीटर लेंथ हो, ठीक है, और 1 मीटर ब्रेथ हो, तो वॉल्यूम कितना आएगा 1 मीटर क्यूब। इसीलिए हम आपसे बार बार कहें कि वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट, वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम इक्वल 1 इंटू 1 इंटू 1, ये देखो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इफ यू आर फाइंडिंग 1 मीटर ऑफ 1 मीटर इंटू 1 मीटर, ये बन जाएगा 1 मीटर क्यूब, ठीक है। अब अगर कोई भी वेसल हो और 1 मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आ रहा है, तो 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम में आप 1000 लीटर जो है मिल्क रख सकते हो। बात समझ में आ रहा है? 1 मीटर क्यूब का वेसल का मतलब हो गया, ये आपका डेस्क, ये टेबल देख रहे हो इतना बड़ा, क्योंकि 1 मीटर कम से कम इतना होगा, ठीक है, इतना तो लेंथ आएगा ही, ये 1 मीटर का होता भी है, तो 1 मीटर इधर से 1 मीटर इधर से 1 मीटर इधर से, ठीक है। इतना बड़े वेसल में 1000 लीटर आपका आराम से मिल्क आ जाता है, वाटर आ जाता है। तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू, आप क्या बोलते हो, 1 मीटर क्यूब इक्वल 1000 लीटर, ठीक है। कन्वर्जन तुम्हें सिखा रहे हैं, 1 मीटर क्यूब का जो वॉल्यूम होगा उसमें 1000 लीटर इजिली ऑक्युपाइड होता है, ठीक। और लीटर आपको पता ही है कितने का होता है, लीटर तो देखे हो ना भाई, 1 लीटर का पैकेट तो देखे हो आप लोग, चलो ठीक है। मीटर क्यूब को क्या लिखोगे, 3 मीटर है ना, देखो 1 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इक्वल, बोलो 1000 लीटर लिखोगे ना, सॉरी 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर इक्वल
1000 लीटर। भाई मीटर क्यूब को 3 टाइम लिखोगे, अब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इक्वल 1000 लीटर। बोलो क्लियर है, समझ में आ रहा है? 1 मीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर है? 100 सेंटीमीटर। तो अब टोटल कितने जीरो आ गए? 6। तो ये आ जाएगा 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, इक्वल 1000 लीटर। 10 टू द पावर 6 लिखे, कोई दिक्कत तो नहीं भाई? जो पावर है वो समझो उतने जीरो है। तो अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब यहां से फाइंड करोगे तो 1000 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 6। बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया ना? तो या इस पे कितना है? 10 टू द पावर 3 और ये कितना है? 10 टू द पावर 6। तो जब डिवाइड करोगे तो 1 टू द पावर 6 मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब। नोट डाउन स्टूडेंट्स सो दैट आई कैन रब। नोट डाउन। Written? Okay. Tell me students, have you written? आगे बढ़ते हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल, जस्ट यू हैव फाइंड 10 टू द 1000 डिवाइडेड बाय, मतलब यह आ जाएगा 10 टू द पावर -3। या ऐसे देखो, हम ऐसे करते हैं 1 अपॉन 10 टू द पावर 3 लीटर। बोलो भाई, इसके 3 जीरो है, इधर माइनस कर देंगे, मतलब ये आ गया 1 अपॉन 1000 कितना लीटर, ये आ गया आपका 1 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो मिल्क रिक्वायर्ड, देखो अब क्या लिखोगे? मिल्क रिक्वायर्ड, मिल्क रिक्वायर्ड इक्वल कितना था? 260 460। तो 462 जो है सेंटीमीटर क्यूब था, सेंटीमीटर क्यूब था ना, तो लीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1 अपॉन 1000 करोगे ना इसको, 1 अपॉन 1000 और इनटू हाउ मेनी स्टूडेंट्स? 1600। ठीक है, अब तो ये चीज है, अब कैलकुलेशन कर लो, ये 3 जीरो इसके 2 जीरो यहाँ से कैंसिल कर दो और बाकी जो है 16 का मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो, उतने लीटर्स आपको मिल जाएंगे। क्लियर है? फटाफट आंसर बता दो स्टूडेंट्स। टेल मी योर आंसर, मल्टीप्लाई एंड जस्ट रिस्पॉन्ड इन योर कमेंट बॉक्स। व्हाट इज द राइट आंसर? हाउ मच लीटर milk will be required? I want to see answer because the time has been over. $7,000. जो ये what is answer in book? वो आपका आ रहा है? That is right. ठीक है, अब आप बुक से आंसर अपना टैली कर लेना, that will be your right answer. क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।